Good morning, students. I am Mohammad Salman, your biology teacher. I hope you all are fine. Today, we are going to talk about the topic transportation in animals. Yesterday, or we can say in previous videos, we have talked about the topic transportation in plants. So, in this video tutorial, we will much focus on how transportation of different kind of things takes place in animals. So, during the evolutionary period, the complexity of animal body takes different turns and improved itself into different kind of cells or differentiated into different kind of cells to perform different functions. What are those functions? Just like the medium which help in transportation of different kinds of nutrients, minerals, everything, etc., etc. So this kind of idea is what we get from evolutionary period, how cells which are originated from the same place but differentiated into different kinds and they perform different types of function. This help in only one thing, that is transportation of different kinds of thing in animal body. For that, we would like to discuss how this transportation occur in animals, that is basically based on blood composition. Okay, or if we talk about higher animals, then we all know that higher animals have different we can say the circulatory system which is closed type. In previous classes you have read about circulatory system which is are of two types. One is open circulatory system and the other one is closed circulatory system. Closed circulatory system includes different kinds of blood vessels through which the blood is moving or transporting from one place to another. By the way, this blood helps in the transportation of different kinds of protein, minerals, electrolytes, nutrients, whatever we get from food is get mixed in the blood and get transported from one place to another where it is required, in cell or in any tissue. So this, if we talk about circulation in animal, so first thing is blood vessels which comes from the closed circulatory system, and these blood vessels are of mainly three types. Number one is artery, number two is veins and third one is capillaries. अब यहाँ पर देखिए जो आर्टरीज का काम है, which we have you all have read about arteries that it carries oxygenated blood, but it is not true in every aspect. Okay, so we just need to understand what is the true function of artery, that is it carries blood away from the heart to the other body organs. Okay, then the function of veins, just opposite of artery, it carries blood towards the heart from the body organs. And there comes the capillaries. The capillaries are nothing but the interjunction between arteries and veins, just like this. If we consider this as arteries and this blue color veins, so this is how they got interconnected with each other. This is vein, this is artery. अब यहाँ पर देखिए they get differentiated into fine capillaries, tube-like structures which help in interconversion, or we can say if blood is coming which is oxygenated, red blood, it get dissolved in the it devoted the oxygen into the tissues where it was required. Then after that it doesn't have any oxygen, it have carbon dioxide. Then this carbon dioxide get transported through the veins towards the heart. Arteries carries blood away from the heart to the other body organs. These are the tissues or body organs. ठीक है, अब यहाँ से जितना भी ब्लड ट्रांसफ़र होगा वो सारा का सारा वेन्स के थ्रू. तो पहले जो आया था उसके अंदर ऑक्सीजन थी और जितने भी टिश्यूज़ थे उन्होंने ऑक्सीजन ले ली. ऑक्सीजन लेने के बाद उन्होंने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वेन्स के साथ कहाँ चला गया, वापस से हार्ट की तरफ. तो कैपिलरीज यहाँ पर इंटरजंक्शन की तरीके से काम करती है. तो इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा.
कि तीनों जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। और एक और बड़ी चीज़ डिफरेंस में ये आती है कि आर्टरीज़ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आर्टरीज़ का जो डायमीटर होता है, ठीक है, इट इज़ मच मोर थिकर, इट्स लाइक दिस, देयर वॉल्स आर मच मोर थिकर इन कंपैरिजन टू वेन्स। वेन्स आर जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, थिक है, यहाँ पर पतली है। क्यों है ऐसा? बिकॉज आर्टरी का जो ब्लड है, आर्टरी में जो ब्लड है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हार्ट, और हार्ट के थ्रू जब ब्लड आता है तो इट हैज़ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमें पाइप थोड़ी मोटी चाहिए होती है, अदरवाइज देयर विल बी चांसेस कि दैट पाइप विल गेट बर्स्ट। इस वजह से आर्टरीज वॉल थोड़ी सी थिक होती हैं और वेन्स की वॉल थिन होती है। ये एक अदर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो आपने जान ही लिया कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। इसके बाद आर्टरीज और वेन्स में दो डिफरेंसेस और हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एटलीस्ट 4 to 5 differences, so that we will discuss them in the classes. ओके, मेन दो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप बाकी और जो डिफरेंसेस हैं वो आप मुझे पता करके क्लास में बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो हमने बात कर ली कि अगर क्लोज टाइप हायर ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड टाइप ब्लड वेसल्स, सॉरी क्लोज टाइप सिस्टम प्रेजेंट है, तो क्लोज टाइप सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी और उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो ब्लड होगा वो ट्रांसफ़र होगा इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब बात करते हैं कि ब्लड क्या चीज़ है। तो बेटा देखिए, ब्लड वेसल्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जो ब्लड की हम बात करने वाले हैं ये एक तरीके का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, विच वी हैव ऑल रेड अबाउट इन क्लास 9। कनेक्टिव टिश्यू है। Why we call it as connective tissue? Because it connects all the body organs with one another, और साथ के साथ जितनी भी चीज़ें नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, है ना। एंड इट हैज़ सेवरल फंक्शंस सच एज नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। अब ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से अगर ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, है ना, उसको भी लेकर के जाना वापस से किसका ही काम है, ब्लड का। और क्या काम है, जितने भी इम्यूनिटी होती है बॉडी में हमारी उसको मेंटेन करने का काम। तीसरा, इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी, सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इम्यूनिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, हार्मोन्स का ट्रांसमिशन, किसी ग्लैंड से जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए एक ही मीन होता है, दैट इज़ ब्लड। उसके अलावा और भी जो मैंने बताया, सबसे पहला तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेन फंक्शंस हैं कुछ इसके जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो ब्लड इज़ मेनली मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड द अदर वन इज़ ब्लड सेल्स। देखिए, प्लाज्मा का परसेंटेज और ब्लड सेल्स का परसेंटेज दोनों को मिला करके ब्लड बनता है। तो आपको ये बताना है कि प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है और ब्लड सेल का परसेंटेज कितना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्लड सेल्स जो होती है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ब्लड सेल जो होती है उनका परसेंटेज कम होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा। और इनकी जब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारा जो प्लाज्मा है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 90% ऑफ वाटर है, और उसके अलावा जो चीज़ बची 8 से 10% की, उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं और भी मिनरल्स हैं, ठीक है, विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अब बात करते हैं बेटा प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो मैंने अभी बात करी थी कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है ब्लड हमारे टिश्यूज़ से,
तो उसमें भी प्लाज्मा ही हमारा हेल्प करता है। साथ के साथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी हमारे अदर टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं, सेल से रिलीज़ होते हैं, उनको भी ले करके जाने का काम, एक्सक्रीट आउट कराने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है कि ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कितना सही रहेगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सो दैट हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन कहीं से भी गड़बड़ ना हो। तो ये 2-3 फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं ब्लड की, प्लाज्मा के, जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट थिंग इज ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज ब्लड सेल्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। बेटा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान रखिएगा। एरिथ्रोसाइट्स ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स भी हम कहते हैं इन्हें। तो एरिथ्रोसाइट, इनका सबसे मेन काम जो होता है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कि इनका शेप जो है वो हमारा बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव मतलब दोनों तरफ से कैसा लगना चाहिए? कॉनकेव जैसा, जस्ट लाइक द कॉनकेव एंड दिस इज बाई कॉनकेव शेप। दिस इज हाउ आवर आरबीसीज लुक लाइक। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे डजंट हैव न्यूक्लियस, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब अगर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या होगा? उसकी जगह पर बेटा प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ये जगह, ठीक है, दोनों तरफ। अब ये हीमोग्लोबिन जो है, दिस हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो समटाइम्स। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन दी आरबीसी, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और यही हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा पोरफायरिन रिंग होती है, जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयरन। और दिस आयरन इज वेरी हेल्पफुल इन बाइंडिंग ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ओके, इसीलिए ब्लड में आपके आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। दैट्स व्हाई वी टेक आयरन इन आवर डाइट, सो दैट हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट में या न्यू सेल्स फॉर्मेशन में भी आयरन या फेरेटिन का जो एक्यूमुलेशन है पोरफायरिन रिंग में, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं उसमें मेंटेनेंस में हेल्पफुल हो। अच्छा, एक और चीज़ हमारी कि आरबीसीज के पास एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है बेटा। ये एंजाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द other body organs, or we can say mainly from the lungs or the liver, so that यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या कर सकें? एलिमिनेट कर सकें। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि CO2 जो है हमारा, वो एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं बेटा आरबीसी के लाइफ स्पैन की। तो आप सभी को पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली ऑफ 120 डेज, ठीक है। और ये 120 डेज के बाद कहाँ जाती है? स्प्लीन में। मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया है, स्प्लीन एक्ट एज दी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन में जाने के बाद होता क्या है बेटा आरबीसी का, या हीमोग्लोबिन का फेट क्या है? तो इसके लिए हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा, जैसे ही स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन से फिर वो लिवर में ट्रांसफ़र होता है, और लिवर में जाने के बाद वहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। ये थोड़ी सी बिगर इन साइज़ होती हैं, और जो भी सेल हमारी डैमेज होती हैं उनको खा करके ख़त्म कर देती है, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इनको कफर सेल्स भी कहते हैं, मैक्रोफेजेस कफर सेल्स, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि मैक्रोफेजेस नाम की कोई सेल होती है लिवर में, विच हेल्प इन ईटिंग द डेड आरबीसीज। तो सो दैट उनसे जो हमारा हीमोग्लोबिन मिलता है, वो हीमोग्लोबिन हमारा अगले कुछ घंटों या दिन में हमारा पास आउट हो जाए और वापस से बोन मैरो में ट्रांसफ़र हो जाए,
जहाँ पर हमारी नई ब्लड सेल्स बन रही हैं, और वहाँ पर वो हीमोग्लोबिन का जो आयरन वाला पार्ट था, फेरेटिन वाला पार्ट था, जो कि पोरफायरिन रिंग से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जा कर के नए सेल में फिर से जुड़ जाए, और जो हमारी नई आरबीसीज बन रही हैं उनमें अगेन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल हो। तो देखिए, ओल्ड आरबीसीज डेड हुई, डेड होने के बाद लीवर में गई, पहले स्प्लीन में गई, फिर लीवर में गई, लीवर से फिर बोन मैरो में गई, और अगेन से रिसाइकिल होकर के नई आरबीसीज में वही हीमोग्लोबिन अटैच होकर के आ गया। और बाकी का जो आपको पता ही है कि आरबीसी का लिवर में जाने के बाद पिगमेंट में भी फॉर्मेशन होता है, जो कि आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा है। दैट इज 2 टाइप के पिगमेंट, बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन, वो भी कहाँ से बनते हैं, आरबीसी। तो ये बात हो गई हमारी आरबीसीज की, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसीज आर वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड दे मेनली एक्ट एज आवर डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन इन्वेडर आता है तो उसको रोकने का, टोकने का, जितने भी काम होते हैं उनको सारा का सारा काम देखना किसका काम है, डब्ल्यूबीसीज का। और ये डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं हमारी बेसिकली बनी है 6 टाइप की, ठीक है, जिसमें कि आते हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मेगाकैरियोसाइट, मोनोसाइट। इनको आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा नाम क्या है, किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, ठीक है। और बाकी 1-2 अगर नाम आप इनके एग्जांपल्स के याद रख लोगे, लाइक ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इनमें से कोई भी 2-4 नाम याद रख लो, दैट वुड बी फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा प्लेटलेट्स की। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसकी स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं हमारी बेटा, ये भी फ्रैगमेंट ऑफ सेल की तरीके से होती हैं, टुकड़े जैसे होते हैं ना सेल के, वैसे इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये मेनली हमारे हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गॉट इंजर्ड एंड blood is seeping out from your veins, then this blood which contains platelet also, these platelets coming in contact with the air, then they form thread or mesh like structures which help in closing the opened surface or wound surface of the body, जिससे कि आपका ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ओके, या फिर इसको हम ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं, इसको आप याद रखिए। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है, ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा, ये तीनों की बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, दैट इज़ लिम्फ, जो कि हमारे इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। अभी जो लिम्फ है बेटा, ये ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि आपकी ये ब्लड वेसल्स का सिस्टम है पूरी बॉडी में, वैसे ही इन्हीं ब्लड वेसल्स के साथ साथ एक और वेसल्स या फिर कैपिलरीज चलती हैं, जिनको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारा ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं लिम्फ। और ये जो लिम्फ होता है बेटा हमारा, ये मेनली क्या करता है कि जितने भी प्रोटीन है, प्लाज्मा है, इनके अमाउंट को, प्रोपोर्शन को बैलेंस करता है। इसमें किसी भी तरीके की आरबीसी नहीं होती, इसलिए लिम्फ का कलर रेड नहीं होता। ये कैसा पेल कलर क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा कलर भी ऐसे ही पेल येलो होता है बेटा। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, उनका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मेनली हमारे जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट है ना, जितने भी और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी हेल्प करना एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पर भी नेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड क्लॉटिंग की थोड़ी सी डिटेल और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।